السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی سرور صاحب، اللہ۔ جی خیریت سے حضرت؟ اللہ کرم جی، الحمد ماشاء اللہ اللہ عافیت سے رکھے حضرت۔ حضرت ایک آپ کے کشمیر کٹھوا کے ایک ساتھی تھے، جی انہوں نے نمبر دیا ہے، کہا سعد صاحب کی حمایت کے بارے میں ان سے کچھ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کس کی؟ کہا سعد کاندلوی صاحب کی حمایت کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی، اچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مفتی سرور صاحب سے بات کر لیجیے، وہ سمجھا دیں گے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ بس کہ سعد صاحب کے خلاف جو فتویٰ ہے، غیر شرعی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیوں مانتے ہو؟ تو وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے امیر ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی غیر شرعی آدمی اگر امیر ہو بھی اور غیر شرعی حکم دے تھوڑی مانا جائے گا اس کا۔ جی جی تو بولے سرور صاحب سمجھا دیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھئی، ایسے آدمی کی تلاش ہے ہم کو۔ کون تھے وہ؟ اب وہ یاد نہیں، واٹس ایپ میں تو آپ کو معلوم نا 70 گروپ کھول کے بیٹھے ہیں، چرچے ہوتے رہتے ہیں، نمبر دیا اتنا یاد ہے آپ کا، تبھی تو نمبر ملا آپ کا۔ کٹھوا کے کوئی ساتھی تھے؟ میں تو کسی سے ابھی بات بھی نہیں کی اس میں بارے نے میں۔ آپ نے کٹھوا کے ساتھی تھے، بولے ہمارے ذمہ دار ہیں، آپ بات نہیں کریں، سعد صاحب کی حمایتی تو ہے ماشاءاللہ، مشہور چیز ہے، شرمانے کی کیا بات ہے اس میں؟ ہاں جی، ارے یہ تو مشہور چیز ہے، آپ سعد صاحب کی حمایتی ہے، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ کون کہہ رہا مشہور ہے؟ ہاں بھئی آپ کے کٹھوا کے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی سعد صاحب کی حمایت میں ہیں، سعد صاحب کے بڑے فضائل بتاتے ہیں۔ کسی ایک آدمی سے بات کرا دو۔ اچھا نہیں ہے نا، مطلب خیر جان دیجیے، مفتی ہیں آپ، نہیں ہے نا آپ، تو غلط فہمی ان یہاں کی دور میرے کر سے دو۔ ایک بات کرا دو نا، کون آدمی کہہ رہا ہے آپ کو، اس سے ارے بات کریں۔ بہت خوشی ہوئی کہ ایک گمراہ کو آپ نہیں مانتے، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا کوئی مفتی ہو، ڈھنگ کا مفتی اور سعد کی حمایت کرے، لیکن انہوں نے بڑے دعوے سے کہا تو میں نے کہا مل لوں۔ کیا حمایت کی؟ انہوں نے کیا دعوے سے کہا، کیا حمایت کی؟ اب بھائی وہی کہہ رہے تھے کہ بھائی دیوبند کا فتویٰ ہے، پھر بھی حضرت کے پاس کچھ دلائل ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پاس ماشاءاللہ۔ کوئی فتویٰ ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہوگی؟ ہاں جی، جو دارالعلوم کا فتویٰ ہے اس کے اوپر کیا دلیل ہوگی؟ ہاں سوال ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے دارالعلوم ہمارے سر آنکھوں پہ اس کا فتویٰ، وہ گمراہ کہے تو دارالعلوم نے دیا ہے، اس پر سارے علماء قائم ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا بھی رہنے والا ہو۔ بس الحمدللہ یہی امید تھی، میں وہی تعجب کر رہا تھا کہ کوئی واقعی میں مفتی ہو اور سعد صاحب کا ساتھ دے، ایسا ناممکن ہے، بلکہ ان کا ساتھ دینا تعاون علی الاسم والعدوان میں آتا ہے، تو میں نے کہا واقعی۔ اس سے تو دارالعلوم کے مولوی صاحب نے منع کیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کس سے؟ جو بات آپ نے بتائی کہ تعاون علی الاسم والعدوان سے۔ ارے بھائی دیکھیے، یہ تو اختلاف، یہ جیسے دارالعلوم میں نے فون کیا تھا، میں نے کہا تھا آپ نے کافر کہا، جی تو انہوں نے کہا نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا لیکن 7ویں لائن میں آپ نے تو لکھا انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے، اور انبیاء کی شان میں بے ادبی کرنے والا تو آٹومیٹک کافر ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ یہ سمجھ کے پھر تو ہو سکتے ہیں، تو جیسے دارالعلوم کے محتمم صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، اور اسی مسئلے ارے میں محتمم صاحب فرد ہیں حضرت، کا مسئلہ چلا تھا ادھر، ہاں یہاں پر بھی چلا تھا یہ والا مسئلہ جموں کشمیر میں بھی۔ ہاں محتمم صاحب سے بات ہوئی تو محتمم صاحب نے کہا کہ ہمارا ان سے جتنا اختلاف تھا بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے ہم کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو انہوں نے کہی ہے تو وہ جانیں گے، وہ کریں گے۔ یہ اس بار کہہ دیا نا انہوں نے، ابھی اس بار جو 14 جون کو فتویٰ آیا اس میں یہی چیز ہے کہ ان کی مدد کرنا بھی غلط چیز کی مدد کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو دارالعلوم کا بھی ایسے کا فتویٰ آیا 14 جون، اور سنیے تو صحیح، یہ تو فروئی اب وہ چیزیں رائے کی بات، وہی تو کہہ رہا ہوں، دارالعلوم منع کرتا ہے کہ ہم نے کافر نہیں کہا، برابر، اور دارالعلوم کے فتوے میں ہی لکھا ہے کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ تو اس میں کسی کی بھی اب رائے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ انبیاء کی شان میں ادنا سی بے اختیاری غلطی کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، اور اختیار سے کرے وہ تو کافر ہی ہوتا ہے، فتویٰ تاتار خانی میں لکھا ہے۔ ہاں جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں محمد یوسف عرض کر رہا ہوں، واپی سے، گجرات سے۔ گجرات سے بول رہے ہیں۔ ہاں تو یہ آدمی جو غلط باتیں پھیلا رہا ہے، اس میں اب آپ مفتی ہیں، ایک آدمی غلط چیز پھیلا رہا ہے تو وہ اس کی مدد کرنا، اس کی گروہ کی مدد کرنا، یقیناً اس کے غلط آدمی کو پروموٹ کرنا ہے، یہ کوئی اس کے لیے پوچھنے جانا پڑے وہ مفتی کو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہیں ہمارے یہاں تو بھائی جو جس طریقے سے ہے الگ الگ سسٹم ہے، جو ادھر چل رہے ہیں شورا والوں کے ساتھ میں وہ ادھر ہی ہیں، اور جو جس علاقے میں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو علماء یہاں کے پڑے تھے، انہوں نے جو ہے کہ جو جہاں کام کر رہے ہیں ان کو وہاں تو کیا یہ درست ہے؟ دارالعلوم نے تو کہا ان کی گمراہیوں سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ ڈالیں گے یہاں پر، آپ کے یہاں گجرات والا ماحول ہمارے یہاں نہیں۔ نہیں گجرات ماحول سے کیا ہوتا ہے حضرت؟ ماحول تو آپ کے یہاں سنیے، ماحول کی بھی بڑی وہ جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم 4 گھر ہیں مسلمانوں کے یہاں، اس میں کیا نام ہے، اس کے اندر
कठुआ के अंदर, शहर के अंदर, और हमको किसी के ऊपर फतवा देंगे तो हम तो वो खुद ही मारे जाएंगे, किसी को मारने की तो जरूरत पर हजरत ये तो शिये भी आपके यहाँ है माशाल्लाह कसीर तादाद में, मतलब कश्मीर में ओवरऑल तो मसला एक जगह का नहीं है ना हजरत, इलाके के एतबार से आपकी जो बदल नहीं जाएगा ना अल्लाह का हुक्म फर तो कहीं भी नहीं बदलेगा, वो तो सऊदी अरब में भी नहीं बदलेगा, वो कौन सा बस फिर हमें तो उसके हिसाब से चलना है, अवाम के जज्बात से उलमा चलेंगे कि उलमा शरीयत के हिसाब से अवाम को चलाएंगे। दोनों दूसरी तरफ जो उलमा है उन सबके ऊपर कोई फतवा लग जाए तो ठीक है, उनके ऊपर लगने की जरूरत है, साफ लिख दिया दारुल उलूम ने कि जो साद नहीं होता है ना। अब आप दारुल का फतवा हमें बता रहे हैं, हमारे पास दारुल का भाई दारुल उलूम का फतवा मैं आपको पढ़ के सुना दूं अभी कि उनके साद के पीछे जो चलेगा फिरका ज़ल्ला बन जाएगा, वो भी किसी ने अपने हाथ से लिखकर भेजा। नहीं 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 नहीं, दारुल उलूम ने साफ लिखा है फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। अगर दारुल की वही कापी जो दारुल के अंदर इस वक्त मौजूद है वो भेज दो, वो वेबसाइट पे आप देख लीजिए ताकि आपको मैं भेजूंगा। दारुल के अंदर लिखकर प्यारे सुनो मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती से सवाल का जवाब लिख कर आता है दारुल के अंदर से वो वाला, अरे वही लिखा हुआ है पहले फतवे में, आखिरी जो सफा है इधर हमारे पास क्यों नहीं आया? भाई आप तो आंखें नहीं खोलेंगे तो सूरज नहीं होगा, ऐसा तो ये कोई दलील नहीं है ना, आपके पास ना आना एक उस चीज के वजूद न होने की दलील है सरवर साहब। तो है बाहर बात कर रहे हैं, सूरज में खड़े होकर बात कर रहे हैं और आंखें अब मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, आपके पास नहीं आया तो इसकी दलील नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। कुरान की कोई आयत आपको याद नहीं है तो इसका मतलब उसका वजूद नहीं है। क्या बातें लगाएंगे आगे से वो नहीं मानेंगे। हाँ जी वही करेंगे जी, हमारा तो दारुल के साथ। हाँ तो दारुल उलूम ने कह दिया है, दारुल उलूम ने दो चीजें कही है आखिरी में कि हम आप पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उसकी गुमराहियों से लोगों को आगाह करें। आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली नहीं है फतवा आगे पहुंचाने की, बिल्कुल डालिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। साहब ने कहा आपको कि आप अरे पढ़िए, अरे भाई मेरा नाम कुरान में थोड़ी आएगा तो मैं अमर बिल मारूफ और नहीं उनकर बंद कर दूंगा, अजीब आदमी हो। अरे हजरत आपका नाम आया है कुरान में कि मिंबर पे बैठ के बयान करो? आपका है अरे आपका नाम, अरे इसी चीज का जवाब दे रहा हूँ, आपका नाम कुरान में कहीं आया है कि मिंबर पे बैठ के लोगों को बयान करो? करते हैं आप जो कहते हैं, आपके से कोई बात इधर उधर की नहीं निकलती है क्या? कोई बात आप इधर उधर की कुरान और हदीस या इसके अलावा आप इधर उधर की बात मुंह से निकालते ही नहीं? क्यों करूं? नहीं निकलती आपको? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलती है। आप रिकॉर्डिंग करके अपनी रिकॉर्डिंग भेजा करो हर दिन जब जुम्मा बयान करते हो ना, उसके बाद। मैं कहाँ करता हूँ बयान जुम्मा को, पर आपके सवाल का जवाब सुनिए ना। आपने यूनिवर्सिटी जैसी जो बड़ी जो बड़ा दारुल है हमारा, जहाँ से पढ़े फारिग हुए, जब उसने जो फतवा दिया वहां तक हम तो उसी ने कहा, अरे उसी ने कहा कि इसकी गुमराहियों से आगाह करो लोगों को और इसके पीछे जो चलेगा फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। और उन्होंने जो इजहार किया है दारुल को, मोहतिम साहब से हमारी खुद बात हुई है। अरे भाई लिखित आपकी हुई नहीं हुई, आप अमानतदारी से काम ले रहे नहीं ले रहे उससे हमें क्या, हम तो लिखी हुई बात की कह रहे हैं। मोहतिम साहब से जो बात हुई है, अरे भाई मोहतमिम साद की निस्बत से सादियानी बहुत झूठ फैलाते हैं। हूँ या कुछ हो, मुझे से उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ झूठ फैलाए या सच फैलाए, मतलब क्या कह रहे हैं मोहतमिम साहब ने आपको क्या कहा बताइए? के फतवे से हट कर नहीं जाता है। तो दारुल उलूम ने तो फतवे में कहा है ना भाई इनकी गुमराही से लोगों को बचाओ। भी हो गया ताबन अल इस्म वल उद्वान, इसके बारे में मोहतिम साहब ने खुद, मैंने सुना है मोहतिम साहब ने। अरे सुना मुना ने लिखवा के लाओ ना भाई, मोहतिम साहब का ऐलान है। अरे 14 जून का फतवा देख लो, उसमें यही कहा गया है कि उसकी गुमराहियों से बचाओ। बात हुई हमारी खुद मोहतिम साहब ने। अरे भाई आपकी बात हुई नहीं हो तो सादियानी तो बहुत झूठ बोलते हैं। देखो साहब के मोहतमिम साहब ने कह दिया कोई गुमराही का फतवा नहीं, मुफ्ती महमूद बुलंदशहरी है ना, कोई नहीं कुछ नहीं कहा। अरे भाई वो तो झूठ बोलते रहते, भाई लिखा के लाओ आप। कौन सच कहता है कौन झूठ कहता है, इसलिए तो कहीं से पढ़े हैं तो हमने भी दारुल के चार दीवारी देखी है। ओ प्यारे सुनो, नहीं है कि आप जो कहेंगे और सारी मैं कुछ कहूँ मेरी के लिखी हुई बात हम सारी आंख बंद करके सुन लेंगे। सरवर साहब लिखी हुई बात ज्यादा वजन रखती है सुनी सुनाई से। नहीं है हमारे यहाँ, सुनो एक बात मेरी, क्या यहाँ एक अभी मियां बशीर साहब का पीछे इंतकाल हुआ। हाँ? और खुद उन्होंने अपनी डायरी के अंदर ये लिखा था कि मैं दारुल देवबंद गया, मैंने उसको जाकर देखा, उसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा और सही सुन्नी अकीदा के मुसलमान हनफी यहाँ देवबंद के अंदर पाए जाते हैं। हाँ? जब ये बात उनकी लिखी हुई पाई गई, हाँ? लिखी पाने के बावजूद भी जब ये पढ़कर अवाम के अंदर सुनाई गई तो उन्हीं के उलमा ने फतवा दिया जो बरेलवी तबके वाले थे। उन्होंने कहा कि ये बंदा मुर्तद हो गया, काफिर हो गया है। किसी की लिखी हुई बात का कोई एतबार नहीं होगा। लिखी हुई बात का एतबार नहीं होता मतलब? लिखी हुई एतबार का अरे लिखी अरे मुकाबले की बात है, अल्लाह के नबी की कही हुई बात है ये। बात का
कोई एतबार नहीं है। अरे किसी की कोई दिक्कत देगा, अगर शक पैदा होगा हमको दारुल देवबंद में चले जाएंगे, उधर जाकर तहकीक। अरे आपको शक नहीं है, आपको वहम में डालना है सादियानियों को, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। डाल सकता है, सुनी बात मेरी। हाँ जी, मुझे ना को वहम में डाल सकता है ना। ओ हो, ऐसा तो गुमान आज तक किसी ने नहीं किया, सहाबा ने भी नहीं किया। माशाल्लाह, आप तो चला जाऊंगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना वाली आयत पढ़ना छोड़ देंगे हम। पढ़िए ला तुझे अरे चले जाएंगे जाकर। अरे पर आपको तो कोई वहम में, यार इधर उधर की, आप इधर उधर की क्यों भांज रहे हो? सीधा सीधा बताओ, दारुल उलूम देवबंद के फतवे को मानते हो कि नहीं? दारुल उलूम देवबंद के फतवे को मानते हो कि नहीं? मुनाजरा करना आपसे। हाँ जी, भागना मैंने को मुनाजरा थोड़ी करना आपसे कि मैं। अरे बा मुनाजरा मत करो, जब दावे लंबे चौड़े करते हो कि दारुल उलूम की दीवारें देखिए, दारुल उलूम हमारी सर आंखों पे मानते हो, तो क्यों खयानत से काम लेते हो? उसके फतवे में साफ लिखा है, तो दारुल का आइन जो हुक्म है उसके मुताबिक, उसमें साफ लिखा है कि इसके पीछे जो भी चलेगा फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। वही पढ़ा हमने भी। अरे उसके अंदर लिखा है साफ के साद के पीछे जो भी चलेगा फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। बोलो नहीं लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो कसम खा लो। खा रहा हूँ कसम, नहीं लिखा है। वह तुम्हारी बीवी को 3 तलाक, कसम खा लो। बीवी को तलाक दो, अपनी को दो। अरे बेवकूफ, का दावा तुम्हारा है, तुम्हारा दावा सच्चा है, कसम खा लो ना। कौन से इलाके के मुफ्ती हैं? अरे तुम कसम खा लो कि दारुल उलूम के फतवे में ऐसा नहीं लिखा। आप मेरे ऊपर को काजी हैं। अरे मैं काजी नहीं, दावा कर रहे हो तो फिर कसम भी खाओ ना। आप झूठ बोल रहे, नहीं मानूंगा। बताओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ कि साद के पीछे जो भी चलेगा फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। मैं चाहे जो भी कसम खाता हूँ, आप कसम खाओ कि ऐसा नहीं लिखा। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कसम खा रहा हूँ, अब आप कसम खा लो। आप झूठ बोल रहे हैं। आप कसम खा लो ना। आपकी बात को मानता ही नहीं हूँ। अरे आप मेरी थोड़ी, मैं तो दारुल उलूम की नकल कर रहा हूँ। मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। मेरे को जानने से क्या फर्क पड़ता है? अरे बौखलाओ मत, सुनो, बार बार बात को इधर उधर ले जा रहे हो। तुम कसम खा लो। एजेंट भी हो सकते हैं, मैं आपको दारुल उलूम का कैसे मान लूंगा तर्जुमा? हाँ जी, कहीं का एजेंट भी हो सकते हैं। मैं तर्जुमान का न दावा है, मैं अरे पगले आजम, न मैं तर्जुमान का दावा है, न मैं कोई हूँ इसका दावा है। साफ साफ दारुल उलूम के फतवे में लिखा है। मैं जानता हूँ कि आप दारुल उलूम को जानते ही नहीं है। दारुल उलूम ने अपने फतवे में लिखा है। अरे भाई, मैंने तो हजरत अबू बकर को भी नहीं देखा, उमर को, साहबा को भी नहीं देखा। अबू बकर के वो हमें नबी के बात पर आइन मुशाहिदे पर ईमान लाना वो हमारा बनता है। क्या बनना है? ऐन मुशाहिदे पे ईमान लाओगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दिया ये सहाबी हैं, तो वो हमारे। अरे पर इधर उधर कहाँ जा रहे हो तुम जो पगले आजम दलील दे रहे हो कि दारुल उलूम को देखा है कि नहीं देखा है। मुझे बकर कहना है ना। ओ परेशान हाल, इधर उधर मत भागो। तुम कह रहे हो दारुल उलूम को देखा है कि नहीं? मैं सीधा सीधा ये पूछ रहा हूँ कि दारुल उलूम ने अपने फतवे में आखिरी पैरा में ये कहा है कि नहीं कि साद के पीछे जो चलेगा वो फिरका ज़ल्ला बन जाएगा? भाग गए। देखो, कसम खाने को राजी नहीं है, लोगों को धोखा देते हैं दारुल उलूम के फतवे के सामने, मतलब हकीकत सामने होने के बावजूद लोगों से फ्रॉड करते हैं। दारुल उलूम ने अपने फतवे में साफ साफ लिखा है जो साद साहब के पीछे जो चलेगा वो फिरका ज़ल्ला बन जाएगा। और लोगों पे जिम्मेदारी डाली है दारुल उलूम ने, उलमाए किराम के ऊपर, संजीदा अहबाब के ऊपर, सबके ऊपर। अच्छा सादियानी एक घटिया दावा ये भी कहते तुमको कहा है। अरे भाई, हर एक का नाम ना मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम है कुरान के अंदर, न खुद दारुल उलूम देवबंद को भी अल्लाह ने नहीं कहा है, लेकिन उमूमी तौर पे जब कहा गया है तो उम्मत का हर फर्द उसमें शामिल है। तो या तो ये जाहिल है या तो जानबूझ के धोखा करते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में साफ कहा है कि भाई फिरका ज़ल्ला बन जाएगा और उम्मत के संजीदा अहबाब यानी सब आ गए। अब नाम हर एक का लिखना जरूरी नहीं, सब आ गए, तो हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक ने जो कुरान के अंदर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कहा है, हुक्म दिया है, तो खास नाम नहीं दिया कि दारुल उलूम देवबंद करे, नदवा करे, उलमा करे, उम्मत का अब्दुल करे, उम्मत का अब्दुल रहमान करे, बल्कि उमूम है, सबको हुक्म है। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद ने भी हर एक को मुखातिब किया है कि उम्मत के उलमाए किराम, संजीदा लोग, साद कांदलवी के जो गुमराह अकाइद उम्मत में आम हो गए हैं उसको दुरुस्त करने की सही करे, कोशिश करे। तो जब ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दारुल उलूम आपसे ये कहे कि साद साहब का भी साथ दो, जहां जो काम चले वो करो।
ارے بھائی سعد صاحب کے عقائد کے جو گمراہی والے پھیل چکے ہیں ان کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ڈالیے. تو ایسے دھوکے باز علماء ہیں اور سعد کا ساتھ دے رہے ہیں, پورا کشمیر جان رہا ہے, اور شرما بھی رہے ہیں, اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں, دیوبند کو ماننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, سعد صاحب کی حمایت بھی کر رہے ہیں, اور سعدیانی ہونے سے شرما بھی رہے ہیں. اللہ امت کی حفاظت فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.